अगर आपके डाइटिशियन आपको कहें कि ये ही खाना है, इससे नहीं चलेगा, और आपकी प्रीवियस डाइट नहीं समझ रहे हैं, आपका वर्क रूटीन नहीं समझ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ गलत है। ये फैट डाइट्स फॉलो करने से सिर्फ बीमारियां आएंगी और कुछ नहीं। ओके, मीन्स यू आर सेइंग कि ब्रेकफास्ट ना खाने से हम ओवरवेट की तरफ हम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट गिरता जाएगा। देखिए, सबसे पहले खाली पेट तो चाय कभी नहीं पीनी है। दैट इज लाइक टेकिंग पॉइजन, क्योंकि ऑलरेडी रात भर में आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है, उसके ऊपर आप चाय पिए तो उससे तो आप कभी भी न्यूट्रिशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। रिफाइंड इज पॉइजन, लाइक रिफाइंड ऑयल इज द वर्स्ट थिंग वन कैन हैव। सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब इतना रिफाइंड सब ऑयल्स लिख आर के वेरी देते हैं। बैड। आजकल स्मूदीज अगेन द जेंजी थिंग। Okay. बहुत से लोग सोचते हैं कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है, जबकि ऐसा नहीं होता। मिल्क पीने से हम उल्टा और एसिडिक हो जाते हैं, जिससे बोन से कैल्शियम डिप्लीट हो जाता है। बिकॉज हेल्थ हैज बिकम अ फैशन इंडस्ट्री, अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री। Hello friends, I welcome you all on this wonderful, exciting and enlightening episode of Gold Color Talks, the podcast which brings you face to face most inspiring and most accomplished professionals across various fields. I, Bijendra Singh, former assistant commandant, and today is our host for the impactful conversation. Today, we are truly privileged to have with us dietitian Rachna Agarwal ma'am, one of the Agra's most renowned and respected names in the field of clinical nutrition. With over dedicated 30 years of experience, she has transformed thousands of lives across various countries and in India through the power of food and holistic wellness. She holds her graduation and post-graduation diploma from prestigious Chandigarh Home Science College, followed by her internship at PGI Chandigarh, India's one of the premier medical institution. After that, she served as a chief dietitian at Diet Coach and Weight Studio. Additionally, she is consulting expert at Burgers.in and Little Veda. Known for her easy to follow and practical advice, she has helped many patients in chronic conditions to manage and to reverse those chronic conditions like PCOS, diabetes, obesity, cardiovascular disease, autoimmune disorders, and many more. And this was done not through extreme diets, but with the simple and sustainable food practices that are having roots in our Indian culture. So today we will diving deep into nutritional myths, personalized diet plans, and power of food in daily healing. So stay tuned, because right advice at the right time, that's the real goal. So first of all, ma'am, I welcome you on Thank you this so much. wonderful platform. Thank you. First of all, please let our audience know what inspired you the most to pursue this career in nutrition and dietetics. So when 34 years back, when I did my degree in nutrition, it was not a very common practice like these Okay. days. But from a small town like Lucknow, I went to Chandigarh. And over there, working in a hospital, I realized that it's all about healthy eating. I could see people struggling with endless diseases and medicine only helping them to a very little limit. Yes, They were ma'am. not being able to get off the diseases. Yes. But I realized when we were advising them and we were practicing healthy diets, there was a marked difference. Yes. Same in my family, I saw the difference, and I really felt that I need to go deep dive into this and I need to really know what's more to it. Sure, ma'am. That's a nice and inspiring thought. बट ट्रस्ट मी, जैसा हम इंडिया सोसाइटी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है आज से 20 साल 30 साल पहले तक, तो आई डोंट थिंक सो एज यू सेड कि दिस फील्ड्स लाइक न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स they were not prominent and much valued these days, although they are having very much relevance and very much value in today's world, where people are very much concerned about their health and their food habits also. So it's a great, ma'am, thank you. So ma'am, you have been always a strong advocate of simple and healthy home cooked food versus fat based food. So how do you develop this philosophy over the years? So I am a person who's genetically prone to putting on weight. So I Okay. myself have struggled a lot with weight. And So what was your maximum weight like you ever put on like in throughout the life? I was Maximum. 82 at one time. 82. Okay, fine. And that was post-pregnancy. Okay. But yes, I was suffering from hormonal problem. And I also am a Punjabi person with a genetic body of being overweight. Okay. Everybody in my family is overweight. And even at 82, my family thought I was
very nice and So- healthy. So nice to know you, ma'am, that you are Punjabi. तो फिर मैम डाइट में how you manage that butter? वो बटर नान और कहाँ जाते हैं फिर? हाँ नहीं तो आप हैरान रहेंगे कि वाइट बटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. So I saw the difference when I went to Chandigarh. I was from my father became a diabetic when he was 32. तो हमारे घर में तो मैंने कभी पराठा खाया ही नहीं था. Though I was a Punjabi, but because of my father हम लोग बहुत सिंपल खाना खाते थे. And वहाँ पे I saw these Punjabi women who were eating ghee and butter, but exercising a lot and eating a lot more healthy food. So I saw that difference ki nahi, it's not only about the butter, it's about eating right and eating healthy. So I learnt a lot and I've learnt a lot practically. Okay. Very very important not to follow these fat diets क्योंकि weight कम होगा पर बाद में दुगना तिगना बढ़कर आएगा और साथ में बहुत सारी बीमारियां लाएगा. Okay. तो मेरा यही कहना है कि आजकल if you're wanting to lose weight, do it for the right reasons and do it the right way. ये फैट डाइट्स फॉलो करने से सिर्फ बीमारियां आएंगी और कुछ नहीं. ओके मैम, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अच्छे जीवन की शुरुआत अच्छी थाली से ही होती है. हमारे दिन की पहली थाली डिफाइन करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा. इन अ वे, आई होप एम आई करेक्ट मैम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Thank you. Ma'am, actually, I want to encash this opportunity and I want to talk about some public awareness topics. So, in your experience, what are the main nutritional myths like you have ever seen in general mass in Agra or like in Delhi, right? Delhi population, like you have like doing your major of the major clients, they have belongs from Delhi NCR and northern India. So, what are the like basic nutrition myths regarding diets and Most important what I have seen is people want to go calorie deficit. Okay. सबको लगता है and even many medical professionals also they advise आपका weight बढ़ गया आप calorie deficit जाइए. So it is not only going calorie deficit, it is taking the right type of calories. वो बहुत important है. Okay. दूसरी चीज़ खाने से डरना नहीं है. I have these overweight women coming to my clinic जो खाने के नाम पे डरती हैं और जब मैं उनके डाइट चार्ट पे रोटी दाल सब्जी लिख देती हूँ तो पहले तो वो डाउट ही करने लगती हैं कि मैम को लगता है कुछ आता नहीं हाँ, है. शायद. एंड सो मेनी टाइम्स वो डाइट फॉलो भी नहीं करती हैं और 5 दिन बाद ही कहती है मैम 5 किलो वेट बढ़ गया, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो आपको अपने खाने से डरना नहीं है, खाने को प्यार करना है और सही मात्रा में सही टाइप का खाना खाना है. दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. मैम, इसमें क्या जोग्राफी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि फॉर एग्जांपल लाइक इन नॉर्थ इंडिया वी से लाइक वी यूज्ड टू हैव रोटी दाल चावल और सब्जी एंड इन द कोस्टल एरियाज दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फिश एंड नॉन वेज फूड्स एंड like in mountains they used to have lot of non-veg and red meat. So their diet, personalized diet, they might also affected by their geography or their genetic makeup. दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. Okay. जेनेटिक एंड जोग्राफी. जोग्राफी की हम बात करें, अगर आप अपने जोग्राफिक एरिया का खाना खाएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फ्रेश मिलेगा, है ना. आप कोस्टल Yes. एरिया पे तो आपको फ्रेश फिश मिलेगी. Yes, तो yes. जो भी खाना फ्रेश है वो उसी जगह पे उग रहा है तो आपको वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव रहेगा और बहुत फ्रेश रहेगा. एंड टॉकिंग अबाउट जेनेटिक बिल्डअप, आपकी जो जेनेटिक बिल्डअप है जो आप सालों से खा रहे हैं, जो आपने पैदा होते ही खाया है, तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने की आदत है. तो Yes, उसको सडनली चेंज करें. अब कितनी बार बच्चे अपनी मदर्स को लेके आ रहे हैं 65-70 एंड ऑल ऑफ अ सडन दाल रोटी बंद करके उनको ओट्स पे डाल दिया है. अब वो लेडीज रो रही हैं बिकॉज उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाया है, उनको टेस्ट नहीं है, खाना देख के उनका मन नहीं कर रहा है खाने का. Okay. तो ऐसा खाना उनको न्यूट्रिशन देगा ही नहीं. Obviously. हाँ, तो यू हैव टू ईट जो आप खाते आ रहे हैं. हाँ, अगर कोई आपकी चॉइस काफ़ी गलत थी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, पर जो आपके एरिया में उग रहा है और जो आपको जेनेटिकली आपकी फैमिली में चलता आ रहा है वही आपको खाना चाहिए. ओके मैम, आपके लाइक थ्रू आउट योर करियर कुछ कई बार डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते होंगे, तो कभी कोई एक ऐसा कोई क्लाइंट आया हो जिसके थ्रू आपने ये न्यूट्रिशन के फील्ड में कुछ अतरंगी सा कोई मिथ सुना हो कि मैडम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं
प्याज अगर मैं मतलब ज़्यादा खाना, मैं मेथी खाना लगूंगा तो मेरे बाल आ जाएंगे क्या मैम? ये तो सो बहुत लाइक कॉमन इट है, इज जस्ट हाँ। वन ऑफ द एग्जांपल, नो नो, लाइक ये तो आई जस्ट बहुत वांट टू नो कॉमन अबाउट है। योर एक्सपीरियंस। व्हाट हैपेंस इज, आई हैव सीन, पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, सम पीपल आर जेनेटिकली थिन, वो पतले Okay. होते हैं। तो अब वो पार्टीज में जाते हैं, ये लेडीज में बहुत कॉमन है, आई डोंट नो अबाउट मेन। तो पार्टी में जाके कोई ना कोई पूछेगा हाउ डिड यू लूज वेट, तो वो कोई एक ऑड फूड आइटम How को did you मेंशन maintain your कर देंगे, figure? हाँ, हाँ। हाउ डू यू मेंटेन। अब एक बार ऐसे ही आई मेट अ लेडी, तो वो उसने सबको ऐसे करा, आई डू योगा फॉर 4 मिनट्स, एंड उसकी वजह से मेरा वो है। तो आई एम That's a nice thing, 4 minutes. 4 minutes, and Okay. 4 minutes doesn't make sense. It doesn't make sense at all. तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत जने हैं। एक मेरे पास पूरी फैमिली आई, पूरी फैमिली चाय और रस खा रही थी, क्योंकि उनको किसी ने बता दिया रस खा के उनका वेट लॉस हुआ है। तो वो बेचारे Okay. पूरी फैमिली, एंड जब मैंने उनके टेस्ट कराए, पूरी फैमिली हाईली अनीमिक थी, Oh क्योंकि my 2 God. महीने से वेट कम करने के लिए वो लोग चाय और रस खा रहे थे। Yes, yes. तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, कोई सुपर फूड नहीं है, कोई भी एक मैजिक सुपर फूड नहीं है जिसको मैं कहूँ आपने ये खाया और आपका वेट लॉस हो आई मीन जाएगा। इंटरनेट पे इतना ज़्यादा ये स्पायरो वगैरह, स्पायरोलिना, इन सब को लेके चलता है कि दे आर लाइक सुपर फूड, दे आर मतलब दे आर फूड ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, कि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इज इट सो? नहीं, एक्चुअली सुपर फूड्स हम उनको कहते हैं जिसमें न्यूट्रिशन औरों के मात्रा में बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा? हाँ, कंपैरेटिवली। तो अब स्पिरुलिना है ना, मोरिंगा है, ये बहुत हैं, बट इनके साथ बहुत सारी चीजें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्पिरुलिना को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, Okay. हाँ, इट्स अ Algae. वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और उसको हर जना डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मोरिंगा पाउडर को भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। Okay. तो उसको किस टाइम पे खाएं, कैसे डाइट में इंक्लूड करें, कैसे धीरे धीरे इंक्लूड करें, उसको इवैल्यूएट करें कि उससे आपको इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा। अगर आपने अपनी डाइट में स्पिरुलिना ले लिया और आपके इंडाइजेशन हो गया, तो जो आपने और भी खाना खाया वो भी सारा अनडाइजेस्टेड शरीर से बाहर निकल आएगा। बिल्कुल, उसके साथ साथ हाँ। इलेक्ट्रोलाइट्स भी सारे मतलब सारे, बॉडी क्योंकि उससे अगर आपको लूज मोशन आ गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, Yeah. तो वो बाकी फूड जो भी आप खा रहे थे उसको भी शरीर से बाहर बिना अनमेटाबोलाइज बाहर निकाल देगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को प्लान करके समझ के फिर इंक्लूड करें। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। अच्छा मैम, आपने क्योंकि देखिए इन टुडेज वर्ल्ड लाइक सिंस लाइक 4.5 years this AI revolution has drastically changed the advertisement landscape and the marketing landscape of our country. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है कि कोई भी उठ के आ जाता है और कोई भी जो है मतलब कोई भी इन द सेंस लाइक, क्योंकि उनके एडवाइस से पता चल जाता है कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। तो एक नॉर्मल यूज़र, हम जैसा यूज़र और लाइक नॉर्मल उन जैसा यूज़र कैसे डिफ्रेंशिएट करे कि ये एक सही डाइट एडवाइस है और ये रॉन्ग डाइट एडवाइस है? अगर आप किसी के पास डाइट एडवाइस पे जा रहे हैं और वो आपकी प्रेजेंट डाइट सुने बिना आपको एक प्लान दे दे, Okay. और जो आप अगर आप नॉर्मली आप उनके और पेशेंट से भी मिल लेते हैं और आपको दिख रहा है कि सबका सेम प्लान है। अभी रिसेंटली ही आगरा में कोई एक आउट स्टेशन कोई डाइटिशियन बहुत पॉपुलर हुए, और मैंने 15-20 जनों की डाइट देखी तो एग्जैक्टली सेम थी, विच मेक्स नो सेंस। और अगर आपके डाइटिशियन आपको कहें कि ये ही खाना है, इससे नहीं चलेगा, और आपकी प्रीवियस डाइट नहीं समझ रहे हैं, आपका वर्क रूटीन नहीं समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ गलत है। ओके ओके, नहीं ये आपने बहुत सही बताया हाँ जी। कि अगर सेम फॉलोअप हो रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब हाँ, कुछ चेक तो कर सकते हैं। बिकॉज अगर 10 जने चाहे सेम हाइट एंड वेट के हैं, पर कुछ ना कुछ तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फर्क होगी। इट कैन नॉट बी कि Okay. सबकी डाइट सेम चल जाएगी, तो ऐसे तो फिर काम ही कुछ नहीं रहा, प्रिंटेड वो सबको दे Actually. दिए एंड वो दे दिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके लिए क्या सूटेबल है। बिकॉज मैं तो मैम ये मानता हूँ कि आधी नॉलेज इज़ लाइक जहर, कि आप नॉलेज ना हो चलेगा, नॉलेज पूरी हो तो चलेगा, बट आधी नॉलेज हो, इधर उधर की गलत नॉलेज हो, तो एक जहर से बढ़ के वो काम करती है लोगों के लिए इन देयर मैं होल आपको लाइफ। इसका एक छोटा एग्जांपल दूंगी। बहुत से लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, Yes, ma'am. है ना, तो वो सबसे पहले गूगल करते हैं, उसमें आ जाता है लो प्रोटीन। अब मैं आगरा की अगर बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स इन आगरा वेजिटेरियन एंड विमेन आर ऑलरेडी ईटिंग वेरी लो प्रोटीन। तो वो जो थोड़ा बहुत प्रोटीन खा रहे होते हैं उसको भी बंद कर देते हैं। Okay. तो व्हेन दे आर एक्चुअली कमिंग विद यूरिक एसिड टू मी, दे आर ऑलमोस्ट लाइक ऑन अ 10% 5% प्रोटीन, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। और उनको अगर मैं दाल वाल खाने को कहती हूँ तो वो डर जाते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट हाफ बेक नॉलेज जो उनको है। Okay, okay. तो यू हैव टू नो द नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स। तो मैम स्पेशली देखिए देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल ग्रुप्स
Like हम जैसे who are working in corporate and who are having job from 9 to 6 or 10 to 6, so they have a lot of time to sit over in the over the chair and मतलब in the office. तो जनरली उनके लिए अगर मैं कहूँ तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान फॉर देम? उसमें इम्पोर्टेंस एक तो ये है कि व्हेन इफ स्पेशली बोथ हस्बैंड वाइफ बोथ द पीपल आर वर्किंग, तो लॉट ऑफ प्री प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. लाइक आई ऑलवेज टेल देम यू हैव टू प्री प्लान योर डिनर, बिकॉज आप ऑफिस से थके आ रहे आएंगे, टायर्ड होंगे, तो ओनली ऑप्शन या तो जोमेटो होगा या घर में कुछ ब्रेड का काम हो जाएगा. सो यू नीड टू प्री प्लान द होल फैमिली. आई ऑलवेज एडवाइज द हस्बैंड हैव टू हेल्प इक्वली, मेल एंड फीमेल मिलके करेंगे तो कुछ हेल्दी बनाएंगे तो पूरी फैमिली को खिलाएंगे. And lastly, stay away from the free food available in offices. Lot of junk food available near your offices. Okay. अपने साथ कैरी करिए. सिंपल रेसिपीज हैं, कुछ एलैबरेट की ज़रूरत नहीं है. आजकल के मौसम में लेके चलें, आपने 2 फ्रूट्स, एक छाछ, एक सत्तू अपने साथ कैरी कर लिया, विच इज़ वेरी फिलिंग, और आपका पूरा 9 to 6 का आपका काम उसमें चल जाएगा. और ये सब चीज़ें बनाने के लिए आपको टोटल 5 to 6 मिनट्स चाहिए, जो कि बहुत डूएबल है. ओनली 5 to 6 minutes. हाँ, सत्तू तो आपने 2 चम्मच डाला, बॉटल में पानी डाला, एंड अगर आप ओवरवेट नहीं है तो शुगर भी हट गई, तो कुछ करना ही नहीं है. छाछ आपने मिक्सी में डाला, पानी डाला, हल्का सा नमक डाला, चलाया, हो गया. फ्रूट्स आप ऑफिस के लिए इजी ले लें. आजकल के टाइम पे संतरा ले लें, केला ले लें, कोई भी ऐसा फ्रूट, तो उसको कुछ करना नहीं है, टिफिन में डाला एंड यू कैरी इट टू. नहीं, इस बात पे मैम आपने एकदम बहुत सही कहा कि लॉट ऑफ प्री प्लानिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स. क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन क्या होता है घर में आप जाते हो, तो मैम क्या आप बताने की कोशिश करेंगे कि आज जैसे आप नॉर्मली इन डे टू डेज इन इंडियन लाइफ, इन इंडियन फैमिली, डे टू डे फैमिली में डेली एक क्वेश्चन एक होता है, और आज खाने में क्या बनाएं? सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है दुनिया का कि आज खाने में क्या बनेगा. इससे रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. देयर इज अ लेडी जिसने मुझसे ऑनलाइन प्लान लिया था रफली 6 years पहले. 6 साल हो गए, उसने अपना प्लान रिन्यू कराती जा रही है. ओके. तो देयर अ टाइम मैंने उसको बोला, मैंने कहा यू बीन टेकिंग डाइट प्लान्स एंड ऑब्वियसली इतने इंटरेक्शन में आई फील यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग that I could offer you. ठीक है, I keep studying, maybe little add-ons, but more or less you know the style of diets I'm giving you. तो उसका ये था, मैम इतना easy है, आपका प्लान आ जाता है और मुझे ये नहीं सोचना पड़ता खाने में क्या बनाए, and I simply make that plan for the whole family and I'm benefiting out of it. Exactly, तो मुझे बहुत ही वो स्वीट लगा, पर मैं हंसी भी बहुत ये सुन के. वेल सेड. ये समस्या हर घर में रहती है, मेरे घर में रहती है, आपके घर में डेफिनेटली रहती होगी कि आज क्या बनेगा खाने में. तो एज मैम हैज सेड, लॉट ऑफ प्री प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ योर वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग. तो प्लीज़ प्री प्लान, और शाम को ये ना पूछें कि आज क्या बनेगा खाने में. शाम को एक डाइट प्लान आप लेके जाएं जो आपको अगले 1 वीक का डिसाइड करके दे देगा. हाँ जी, बिल्कुल. ओके, थैंक यू मैम. तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस पे हम बात करते हैं. तो अगर मैम मैं आपसे पूछूं कि आप एक जनरल मास को कोई एक ऐसा एडवाइस आप देना चाहें जो वो आज मान लो उसने सुबह इम्प्लीमेंट किया तो उसको इफेक्ट शाम तक दिख जाएगा अपनी डाइट में, जिससे वो मोटिवेट हो और अपनी डाइट को और बेहतर बनाने की कोशिश करे कि हाँ मैंने आज स्टार्ट चूइंग योर फूड. स्टार्ट चूइंग योर फूड. घड़ी देखकर 15 से 18 मिनट जो भी आप खाना खा रहे हो, इवन अगर जंक फूड खा रहे हो, आप उसको चबाओ एंड यू विल सी द डिफरेंस इन अ डेज टाइम. जस्ट चू एवरीथिंग वेरी वेल. चाहे वो फ्रूट हो, चाहे कुछ हो. इफ यू आर टेकिंग अ ड्रिंक, उसको सिप कर करके पियो. जैसे सिंपल चीजें जो मैंने छाछ और सत्तू भी बोला, उसको भी बैठ कर सिप कर करके पीना. दैट वन थिंग विल रियली चेंज. ओके. चूइंग से लाइक मैम व्हाट हाउ इट अफेक्ट्स मैम, लाइक जो हमारे सलाइवरी जूसेस होते हैं, हाँ उनकी मिक्सिंग होने से डाइजेशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है. हमारा जो डाइजेशन है, इट्स अ चेन रिएक्शन. वन थिंग लीड्स टू द अदर. तो अगर आपने चूइंग करी, इनफ सलाइवा आपके उसमें जाएगा, पहली चीज. सेकेंडली जो खाना है उसके स्मॉल पार्टिकल्स बन जाएंगे. अगर वो बड़े पार्टिकल्स में होके स्टमक में जाएगा तो वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा एज इट इज, वो आपके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा. तो वो आप अगर आपने इनफ चू किया, इनफ सलाइवा इनफ गया, तो आपके स्टमक में उतने ही जूसेस सिक्रीट हुए, तो वो खाना ठीक से आपका यूटिलाइज हो जाएगा. ओके मैम, व्हाट practical advice you want to give to all my friends who are working in corporate life, जहाँ पर दिन में कम से कम 3 से 4 चाय हो जाती हैं,
अब वहाँ कुछ बहुत डेडिकेटेड, बहुत आइडियल टाइप के इंसान होते हैं, तो फिर वो तो कोशिश कर लेते हैं कि भाई मैं चाय नहीं पीऊँगा आज और मैं कंट्रोल करूँगा चाय पे। तो सुबह की 3 चाय हमने मिस कर दी, लेकिन शाम आते आते चौथी या पाँचवीं चाय पे अपने आप जो है कि यार चल दे दे चाय पी ले। तो इस टाइप के लोगों को व्हाट प्रैक्टिकल एडवाइस कैन यू गिव सो दैट कि एक चाय का मतलब थोड़ा सा एक भूत उतरे? देखिए, सबसे पहले खाली पेट तो चाय कभी नहीं पीनी है। दैट इज़ लाइक टेकिंग पॉइजन, क्योंकि ऑलरेडी रात भर में आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है, उसके ऊपर आप चाय पिए तो उससे तो आप कभी भी न्यूट्रिशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। Okay. सेकेंडली, चाय को मील्स के साथ नहीं लेना चाहिए, बिकॉज चाय में इनिबिटर्स होते हैं। तो अगर आपने हिम्मत करके पालक की सब्जी तो खा ली पर उसके बाद चाय पी ली, तो उसका सारा आयरन आपकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। Okay, okay. एंड चाय इज़ एन एडिक्शन टू हैव हॉट ड्रिंक्स, ये हम लोग को आदत पड़ गई है। तो मैं सबको एडवाइस करती हूँ 2-3 स्पाइसेस रख लें अपने ऑफिस में, सौंफ, जीरा, अजवाइन, अकॉर्डिंग टू द सीजन, वो चेंज होते रहेंगे। और अपने पानी में वो डाल लें, जिसको अगर हम बेचना चाहें तो डिटॉक्स ड्रिंक कर लेंगे, पर एक्चुअली कुछ भी नहीं है। गर्म पानी विद अ स्पाइस, वो एक हल्का सा फ्लेवर आता है तो आपको सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। एंड कीप सिपिंग ऑन टू दैट हॉट वाटर। ओके, क्योंकि मैम चाय के रिगार्डिंग लोग थोड़ा सेंटी हो जाते हैं। मेरी मदर भी सेंटी हो जाती है। मेरे फादर इनफैक्ट ही वाज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो ऑल दोज पीपल जो आर्मी से होते हैं उनके लिए तो चाय इट्स लाइक नेसेसरी, फ्रॉम लाइक बेड टी टू द इवनिंग टी, उनके लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो उनके सामने अगर मैं चाय की बुराई करूँगा तो इट्स नॉट जस्टिफाइड, बट स्टिल नहीं तो उसमें आप एक काम आई मस्ट से कि इन आवर कल्चर मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स में बहुत टेक्निकली मैम इसको ना प्लान करके हमारे इंडियन कल्चर में इसको बहुत ही इंग्रेव कर दिया है। अब व्यथा ये है कि आज के समय में चाय इज़ नॉट जस्ट अ हॉट ड्रिंक, चाय इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रीटिंग। भाई आप आइए मेरे ऑफिस में आए हैं, प्लीज़ सर के लिए चाय लाओ, ठीक है। और अगर आप मेरे घर में मेहमान घर में आए हैं, प्लीज़ क्या लेंगे, चाय लेंगे, तो चल पप्पू चाय बना लो, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि चाय इट इज़ लाइक कि बहुत एक ग्रीटिंग का सिंबल है। तो हम चाय में सपोज जैसे अब चाय भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक ग्रीन टी, दिस मसाला टी, और आजकल एक कावा करके भी आता है मैम। तो और बाकी ये आपका जो काली चाय है जो हम लोग प्रोसेस वाली हम लेते हैं, तो as we all know it contains tannins. Yes, it contains tannins which affects our body. But what can be done to चाय जो हमें चाय किसी तरीके से इफेक्ट ना उसमें करे? आप ये कर सकते हैं, पहली बात उसकी क्वांटिटी कम करें, ओके, है ना, बड़े छोटे क्वांटिटी आप कम कर दें। चीनी की मात्रा कम करें। Okay. चीनी को रिप्लेस कर लें जैगरी या आप खांड से। नो हनी, क्योंकि हनी गर्म चीज़ों में नहीं डलना चाहिए। Okay. कई लोग बहुत उसमें करते हैं। दूध कम डालें उसमें और उसको पकाएं कम। सिंगल ब्रू, ओके, हाँ, सिंगल ब्रू। सिंगल ब्रू पकाने से उसका टैनिन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो चाय बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। इट्स अ न्यू इनसाइट मैम, ये मुझे नहीं पता था, ये आपने आज पहली बार बताया है कि वी नीड ओनली सिंगल ब्रू फॉर Single मेकिंग अ brew. टी, सो दैट टैनिन लेवल हम कम कर सकें। कम कर सकते तो इट्स अ गुड एडवाइस, लिसनर्स काइंडली कीप इन माइंड कि कभी अगर आप चाय को बनाएं तो एक बार उबाल लें, एक बार 2 बार, उससे ज़्यादा उबाल ना लें, क्योंकि ज़्यादा उबाल लेने से टैनिन की मात्रा बढ़ जाती है, विट अफेक्ट्स योर बॉडी एंड लंग्स एंड कंप्लीट बॉडी पार्ट्स। सो मैम, कुड यू प्लीज़ टेल अस नाउ कि जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड हैबिट्स हैं और जो अभी करंट में जेनजी के द्वारा जो फूड हैबिट्स जो चल रही हैं, तो हाउ कैन वी मेक इट कि जेनजी पीपल कैन लाइक इट? जो हमारे ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स हैं उनको हम जेनजी लोगों के लिए उसको कैसे बना सकें, या वो लोग उस ट्रेडिशनल फूड को कैसे पसंद करना स्टार्ट कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिकॉज आजकल के बच्चे अलग ही तरह के टेस्ट बड्स के साथ पैदा होते हैं। तो उनको पास्ता भी खाना है, ये भी खाना है, एंड एक्चुअली इफ आई टेल देम दलिया खिचड़ी रोटी सब्जी खाओ तो वो नहीं खाएंगे। तो उसमें आई फील इसमें जो होम मेकर है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें आप कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, लाइक यू हैव आजकल मिलेट्स पास्ता,
मिलेट्स नूडल है, तो उसमें Okay. मैदा कम है पर वो पास्ता है, नूडल है, जो बच्चों के लिए बेटर है. अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दीज थिंग्स, बट दे आर अ शेड बेटर देन द अदर अनहेल्दी फूड जो बच्चे खाते हैं. Okay. अगर बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है तो बाजार में जो डोमिनोज वगैरह में, आई एम सॉरी टू नेम अ ब्रांड, पर जो भी ब्रांडेड पिज़्ज़ाज मिल रहे हैं उसमें द कैलोरी कंटेंट इतनी ज़्यादा हाई है कि एक पीस पिज़्ज़ा से आपका पूरा मील का कैलोरीज आ रहे हैं. Okay. तो उसकी जगह घर में अगर आप बनाएं तो आप कम से कम फ्रेश टोमेटो सॉस बनाएंगे तो उसमें आपको टोमेटोज का बेनिफिट मिलेगा. कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो आप करेंगे, थोड़ा सा पनीर डाल देंगे चीज के साथ, आप चीज भी लिमिट में डालेंगे. Okay. तो आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तो वंस इन अ वाइल बच्चों को घर में स्पाइसी हेल्दी फूड उनकी चॉइस का बना कर दें तो भी आपकी क्वालिटी विल बी मच मच बेटर एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग इनटू द मार्केट. Ma'am, there is one more question. Like many of my friends, they are suffering from lactose intolerance. तो मैम, could you please shed some light on this lactose intolerance? क्या होता है ये, और ये भारत में लगातार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, and what are the preventive measures जो हम थोड़ा सा एक listener इसको we can keep in mind so that we can save ourselves from this lactose intolerance? एक्चुअली मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे को एक इंजाइम चाहिए होता है Okay. जिसका प्रोडक्शन कभी कभी हमारी बॉडी में कम हो जाता है या शुरू से नहीं होता. कई बार बच्चे होते हैं स्कूल जाने से पहले मदर्स फोर्स कर रही होती हैं दूध पियो और उनको पीने से नॉजिया या अनकंफर्टेबल फील होता है. तो सबसे पहली चीज़ टू स्टार्ट विथ, मिल्क की वो क्वालिटी नहीं है जो कि 30-35 साल पहले थी. पहले काउज एंड बफलोज बहुत अच्छे से रखी जाती थी, उनको अच्छा खाना दिया जाता था और उनके कैटल को दूध देने के बाद वो विलिंगली दूध देती थी जिसकी Yes. क्वालिटी अच्छी थी और जिसमें हेल्दी हार्मोन्स भी थे. Okay. पर आजकल मिल्क इतना नीड में है कि काउज एंड बफलोज को अनहेल्दी हार्मोनल इंजेक्शंस, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, डाइट प्रॉपर दी नहीं जा रही है, बहुत गंदे इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है. तो वो मिल्क बहुत अनहेल्दी है, उससे अनहेल्दी हार्मोन्स आ रहे हैं और वो हमारे बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं. तो इट इज़ एन अनक्लेम सुपर फूड जो कि है नहीं. Cow's milk is made for cow's children Okay. and buffalo milk is made for buffalo's Buffalo children. children. हाँ, Okay. वो हमारे लिए नहीं है. तो छोटे बच्चों को मदर्स मिल्क दें. किसी कारण माँ को मिल्क नहीं आ रहा तो उसकी जल्दी वीनिंग शुरू करें. एंड एज अडल्ट्स ऑल्सो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स पे निर्भर नहीं रहें, स्पेशली वेजिटेरियन पीपल. Okay. बहुत से लोग सोचते हैं कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है, जबकि ऐसा नहीं होता. मिल्क पीने से हम उल्टा और एसिडिक हो जाते हैं जिससे बोन से कैल्शियम डिप्लीट हो जाता है. Okay. हाँ, So तो this is the normally- first time I have listened this कि दूध पीने से बोन्स डिप्लीट हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली आप देखिए आजकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करने में हेल्प करते Yes. हैं. तो अगर आपको मिल्क सूट नहीं कर रहा, वो बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा. उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बोन से मिनरल्स एंड कैल्शियम्स डिप्लीट हो जाते हैं Okay. और बोन्स आपकी और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाती हैं. Okay. तो अगर आपको मिल्क सूट नहीं हो रहा है आप मत लीजिए. अगर सूट कर भी रहा है तो लिमिट में लीजिए. एंड बहुत ज़्यादा स्पेशली बच्चों को मिल्क प्रोडक्ट्स पे मत रखिए. जो बच्चे ज़्यादा मिल्क फेड होते हैं वो अनीमिक होते हैं क्योंकि मिल्क में आयरन नहीं होता. तो हाँ. I'm absolutely agreed with this statement क्योंकि अब देखिए ना कि पॉपुलेशन ड्रास्टिकली हमारी इतनी सारी बढ़ती जा रही है एंड आवर कैटल स्टॉक जो लाइफ स्टॉक है हमारा लाइक बफेलोज एंड काउज जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है. पॉपुलेशन के हिसाब से तो नहीं बढ़ रही होगी. तो इतना सारा लोड कि बाकी सारी पॉपुलेशन को दूध पिलाना है तो और हमें एक्सपोर्ट भी करना है बिकॉज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इनफैक्ट कंज्यूमर ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट एंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ. तो इतने सारे लोगों को दूध की उनकी डिमांड पूरी करनी है. तो उसके लिए अब एज यू सेड लाइक कि वो ऑक्सीटोसिन या अदर हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाते हैं सो दैट जो मिल्क का जो वो उसको इंड्यूस कर सकें, उसके रिलीज को इंड्यूस कर सकें. और इसमें मैम लाइक वॉट एवर आई हैव सीन कि इसमें कई सारी मिलावट भी होती है. सिंथेटिक मिल्क इज वेरी कॉमन. वेरी कॉमन. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? एक बेसिक तो आयोडीन टेस्ट होता है जिससे Okay. आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कोई स्टार्च की मिलावट है कि नहीं, जैसे कॉर्नफ्लावर वगैरह. तो अगर Okay. आप आयोडीन डालेंगे एंड इफ इट टर्न्स ब्लू तो आपको मालूम है कि उसमें कोई भी स्टार्च डाला हुआ है. पर आजकल जो रेसिपीज हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा. बट अपार्ट फ्रॉम मिलावट इन द मिल्क, उसके अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स. आजकल आप देखें लड़कियां इतनी ज़्यादा पीसीओडी पीसीओएस की बीमारी उनको हो रही है और उसका एक बहुत बड़ा कारण इज़ द मिल्क.
Okay. और एनिमल प्रोड्यूस जो कि हार्मोनल लेडन है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से ये हार्मोन्स हमारे अंदर ना आए। ओके, थैंक यू मैम फॉर दिस इंसाइट, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में तो कई सारी चीज़ें जो हमारे आई बिलीव कि हमारे लिसनर्स को भी नहीं पता होगा पहले, जो उनको आपके इस पॉडकास्ट के आपको पता उनको पता चलेगा। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर दोज पीपल लाइक माय फ्रेंड्स, जो मेरे ऐसे हैं जो सुबह थोड़ा लेट उठते हैं और फिर जल्दी जल्दी में उनको जो है ऑफिस जाना होता है, दे जनरली स्किप देयर ब्रेकफास्ट, और फिर धीरे धीरे होते होते तो उनकी जो पहली मील होती है वो लंच ही होती है। तो जनरली कई बार वो थोड़ा भरा भरा ज़्यादा फील करते हैं और लथार्जी ज़्यादा फील करते हैं। तो व्हाट कैन बी डन, और व्हाट practical advice you want to give to those kind of people who generally miss their breakfast? They didn't have any kind of food till 1 o'clock or 2 o'clock. They are having their first diet on 2 o'clock. Like what can सी what they ब्रेकफास्ट can do इज to- वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है Okay. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रेजुअली वेट गेन करने लगते हैं, पहली चीज। सेकेंडली, आप एसिडिटी के भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि Okay. बॉडी में जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं पर खाना मिल नहीं रहा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, मीन्स यू आर सेइंग कि ब्रेकफास्ट ना खाने से हम ओवरवेट की तरफ हम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट गिरता जाएगा Okay. अगर मॉर्निंग में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आपके उठने के 2 घंटे के अंदर आपको पहला मील मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। पर वो मील बहुत हैवी भी नहीं होना चाहिए। ओके, हमारी मील सन के अकॉर्डिंगली चलने चाहिए, तो सन उस समय लाइट है तो मील लाइट होना चाहिए। तो द बेस्ट ब्रेकफास्ट आपको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इज फ्रूट्स। ओके, आप सीजन का फ्रूट, आजकल के सीजन में आपने एक बड़ा कटोरा तरबूज का खाया, थोड़े से सोक्ड नट्स एंड सीड्स खाए विच नीड्स नो कुकिंग, Okay. कुछ आपको नहीं करना है, आपने वो खाया, बेस्ट ब्रेकफास्ट। Okay. और भी जल्दी एक बनाना लिया, छील के उसको अच्छे से चू करके खा लिया, और थोड़े से नट्स एंड सीड्स खाए एंड यू आर सॉर्टेड। तो सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है इज अ बोल ऑफ फ्रूट्स। ओके मैम। एंड ट्राई नॉट मिक्सिंग टू मेनी फ्रूट्स टुगेदर, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक Okay. या 2 टाइप का फ्रूट ही खाएं, ज़्यादा मिक्सिंग ना करें। मैम, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन अबाउट दिस जेन जी जनरेशन। आजकल एक नया फरमान क्या मतलब एक नई अफवाह चली है, मैं इसे अफवाह ही कहूँगा बिकॉज आई डेंट लाइक एनी ऑफ देम, कि भाई तुम्हें जो है फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, तुम्हें एयर फ्राइड फूड खाना चाहिए बिकॉज एयर फ्राइड फूड इज़ गुड। और एयर फ्राइड फूड की जो इक्विपमेंट्स हैं और जो मशीन्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉस्टिंग गुड। सो इज़ इट अ प्रोपेगेंडा फ्रॉम लाइक मैन्युफैक्चरर, और ये एयर फ्रायर टाइप के जो उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा हो सकता है, या फिर एक्चुअली में एयर फ्राइड फूड में कुछ बात है जो कि डेफिनेटली लगता तो सब नहीं रहता प्रोपेगेंडा, पैसे Okay. बनाने का एक नया तरीका है। Okay. देखिए, कुकिंग मेथड से आपके खाने की न्यूट्रिशन पे बहुत असर पड़ता है, आप वो खाना कैसे बना रहे फुली हैं, एग्रीड मैम। है ना। तो ट्रेडिशनली हम फ्राइड फूड खाते थे, Okay. जो कि बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था। उसमें भी हम किस टाइप का मीडियम लेते थे फ्राइंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस ऑयल या घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, जिससे कि खाना आपका जले ना। Okay. तो अगर आपको फ्राइड फूड खाना है, इट हैज़ टू बी वेरी ओकेजनल, जो कि एक फेस्टिव फूड है। Okay. नॉर्मल में जो खाना है आपका, वो स्लो हीट पे कुक होना चाहिए। तो एयर फ्रायर गिव्स अ वेरी इंटेंस हीट, वो खाने को पका देता है, पर उसके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको भी किल कर देता है, तो उनकी Okay. वो लाइवलीनेस खत्म कर देता है। तो Okay. स्लो कुकिंग इज द बेस्ट। स्लो कुकिंग इज द हाँ, बेस्ट। आप पुराने टाइम में देखें, मटकों में खुले में दाल पक रही है, धीरे धीरे खाना धीरे धीरे बन रहा है, चूल्हे गुड़ पे भी रोटी बहुत बन धीरे-धीरे रही है, बनता था पहले। हाँ जी, तंदूर पे रोटी धीरे धीरे सिक रही है। एंड ये तो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। कब अबाउट 15 साल पहले मुझे किसी ने एक मट्टी का वो दिया और मैंने दाल बनाई, एंड आई सॉ द डिफरेंस। मेरे घर में जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जो कि अरहर की दाल और ये सब नहीं खाते थे, कहते थे हमें इससे गैस बनती है। जब वो मैं खुला पका के दाल बनाती थी, वो बहुत हैप्पीली खा रहे थे। एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो आई फेल्ट आई वॉज इंजॉइंग दैट फूड बेटर। और मेरे यहाँ तो सारी कुकिंग स्लो कुकिंग होती है। सुबह मिट्टी के बर्तनों में दाल डाल देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, आई गो फॉर अ वॉक, 1 घंटे बाद आती हूँ, मेरी दाल रेडी है, अरे बस वाह। छौंका लगाने का काम बच मिट्टी के गया। बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं आज? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा, इट्स अ बिट सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक मैंने बहुत ट्रेडिशनल बर्तन बहुत जगह जगह से ढूंढे हैं। मैं Okay. रिसेंटली बैंगलोर गई थी, मैं वहां से कांसे के बर्तन लेकर आई। तो फ्लाइट में भी जब वो चेकिंग कर रहे थे तो देख रहे थे ये सामान क्या मैम लेकर आ आपको रही है। खुलवाया होगा, देखा हाँ, होगा सारा कांसे के खुलवाया था बर्तन। बिकॉज Okay. इट वॉज हैवी।
एंड आई हैव मैनेज टू गेट वेरी डिफरेंट एंड यूनिक यूटेंसिल्स फ्रॉम ऑल ओवर और उसी में मैं कुकिंग करती हूँ. तो फ्राइंग ओकेजनली ठीक है, आई डू नॉट एडवाइज फ्राइंग बट इट्स अ फेस्टिव वे, कभी कभार ले लें. और उसमें कौन से ऑयल में आप फ्राइंग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, refined. What about refined? रिफाइंड इज पॉइजन. अगर घर में है तो अभी उसको ड्रेन्स में डाल दीजिए. Refined is poison. Like रिफाइंड ऑयल इज द वर्स्ट थिंग वन कैन हैव. sunflower, soybean, ये सब इतना refined सब oils are लिख के very देते bad. हैं. Everything is like. एवरीथिंग इज वेरी बैड. अगेन आप कहेंगे मैं तो अपने घर में तेल खुद निकालती हूँ. आई हैव अ मशीन. अरे great. आई एक्सट्रैक्ट माई ओन ऑयल्स. और उन ऑयल्स का जो फ्लेवर और अरोमा है वो यू कांट मैच अप टू वो तो it's a एंड pure इवन फॉर डाइजेशन. बल्कि उस ऑयल में अगर मैं कभी फ्राइंग कर भी लेती हूँ तो आपको खाना खाने के बाद कभी भी एसिडिक या हैवी नहीं लगेगा. Okay. So you are saying like these kinds of refined and this sunflower or soybean ये. सब 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 बिल्कुल So- बंद कर दीजिए. सिर्फ कोल्ड प्रेस. अब जैसे हम आगरा में हैं तो यहाँ सरसों का तेल बेस्ट है. सरसों का तेल. सरसों is का best. तेल एंड Okay. बाकी थोड़ा बहुत घी. Ghee. हाँ Okay. हाँ जी. Fine. Ma'am, you have been involved, as we all know, like you have been involved in various workshops and you have written articles in many publications like Times of India and health magazines. So, what is the role of community engagement you are seeing in this field or like in this field where people should have a look for a diet and they should give a proper importance towards a diet plan? So what is the role of community engagement in it? It's very very important. People should be aware कि आजकल बिकॉज हेल्थ हैज़ बिकम अ फैशन इंडस्ट्री, अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री. Yes. तो उसमें बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें एडवाइस हो रही हैं. तो लोगों को बहुत ज़रूरी है सही जानकारी होने के लिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली राइट फॉर देम, व्हाट इज़ सस्टेनेबल, और वो जो कर रहे हैं वो एक्चुअल हेल्थ के लिए कर रहे हैं या सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन या फैशन के लिए कर रहे हैं. और यही मेरा मानना है कि ओवर द इयर्स जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, आई लाइक टू शेयर इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से ये मैं आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूँ. बहुत सैड लगता है मेरे पास जब यंगस्टर्स कुछ बहुत रैंडम चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे थिंक इट्स हेल्दी. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, मैंने हेल्थ मैगजीन में स्मूदीज के ऊपर आर्टिकल लिखा था. Okay. आजकल स्मूदीज अगेन द जेंजी थिंग. Yeah, हर Gen Z जना thing. मिक्सी में सब कुछ डाला और स्मूदी बनाई और पी ली. Yes, तो yes. माय क्वेश्चन इज फिर भगवान जी ने आपको दांत क्यों दिए थे? या तो वो दांत भी निकाल के फेंक Yes, दो. yes, yes. अगर गॉड हैज गिवन अस टीथ तो लर्न टू चू. आप Obviously. क्यों स्मूदीज बना रहे हो? दे विल जस्ट कीप यू ब्लोटेड एंड हेवी. तो इट्स नॉट Okay, नीडेड because एट ऑल. in smoothie there is no chewing, and because of no chewing there is no mixing of salivary amylase or other बिल्कुल. enzymes एंड in नॉर्मली your देयर रॉन्ग gut. कॉम्बिनेशंस इन द स्मूदी. नॉर्मली आप फ्रूट्स एंड कर्ड या उसको मिक्स करते हो. Okay. जबकि मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स को कभी किसी और चीज से मिक्स नहीं करते हैं. तो आप मोस्टली जो रेसिपीज देखेंगे स्मूदीज की वो सबसे गलत आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस है. Okay. तो ना ही एक तो आप चूइंग से हट रहे हैं एंड सेकेंडली आप बहुत गलत कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं विच विल कीप यू न्यूट्रिशनली वेरी अनबैलेंस्ड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी अवेयर कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं. वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू मैम. आई बिलीव कि आज के इस पॉडकास्ट पे हम लोगों को बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें पता चली हैं जो आज तक मुझे पर्सनली, लाइक आई हैव बीन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 10 to 12 years in many places. I have been to many states in India, but many things जो आज मैम ने हमें बताई हैं वो हमें कई सारी चीज़ें पता नहीं थी. फॉर एग्जांपल लाइक चाय कैसे बनाना है हमें, ठीक है, ये मुझे पहली बार पता चला है कि चाय में हमें एक ही उबाल लेना चाहिए. अगर हम एक उबाल लेते हैं तो कम से कम चाय की थोड़ी वैल्यू हम बचा सकते हैं. और इसके अलावा भी लाइक एयर फ्राइड फूड. तो मैम लास्टली आई वांट टू आस्क यू what is the practical message or practical advice you want to give to our listeners so that they can stay healthy and stay informed and they can be away from all these nutritional myths? So आप जब भी कोई प्लान फॉलो करने का सोचते हैं तो वो प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जो पूरी फैमिली के लिए डूएबल हो. अगर एक लेडी या मेल ने अपनी डाइट बनाई और जो होम कुकर है उसको सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सेकेंडली, जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं उसको ऐसे सोच के करें जो कि सस्टेनेबल हो, आप कर सकें. अगर डाइट प्लान बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिफिकल्ट होगा, आप 10 दिन 15 दिन कर लेंगे, वेट लॉस कर भी लेंगे, बट यू विल कम बैक टू व्हाट यू यूज्ड टू ईट. तो बहुत ज़रूरी है कि आप रियलिस्टिक टारगेट्स रखें.
अगर आप वेट लॉस की बात करें तो यू शुड ओनली टारगेट 10% ऑफ वेट लॉस, 10% ऑफ योर बॉडी वेट. आपने जब वो कर लिया उसको मेंटेन करें और अपनी बॉडी की क्षमता और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डाइटरी चेंजेस करें. So thank you, ma'am, for your valuable insights. Your knowledge and your skills in this field, it's truly inspiring. How you dedicatedly promoting health through simple and our traditional food habits. So thank you, ma'am. Thank you for this valuable insight. Your dedication towards the promoting health through simple and sustainable dietary practice is truly inspiring. For our listeners, I must say that small and consistent changes can lead to a better healthy life. So that's all for today's episode of Gold Collar Talks. I hope you find this conversation impactful and enlightening one, and you will definitely take charge of your health, because every consultation is not a decision or an answer, it's the beginning of transformation. Because every consultation is not just an answer, it's the beginning of transformation. So until next time, stay tuned and stay focused, stay healthy. Thank you. Jai Hind.